Hello, dear students. Welcome back. I am Shweta and we are studying chapter 3rd, that is computerized accounting with GST. In last lecture, we have seen how to create company and profile of that company. Today, we are going to see that after creating a company, how we can maintain account or ledgers in that company. Okay, so let us begin. This is one of the practical question which we are going to see today. The question is create ledger accounts using accounting package. So you are already having what groups which are built in. Groups are already built in and you want to just create a ledger. Some ledger accounts are given and you want to allocate the proper groups for this ledger accounts, right? So how we are going to do this, that we are going to see. See, ledger accounts are import duty, insurance, machinery, audit fee, purchase, sales, telephone charges, interest received, salary, professional fees. So all these ledgers we are going to create in our previously built company or in our previously created company. So in the last lecture we have created which company? Yes, we have created BB Enterprises company. In that company itself, we are going to create all this ledger accounts. Okay, now see in the first lecture, सबसे जो पहला लेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ाए थे. अगर आपको याद होगा तो otherwise you can go and see that lecture. In that I have taught you different types of groups like capital account is there, fixed asset, current liabilities, indirect expenses, direct income, indirect income, all these things we have seen. So depending upon that means उसमें कौन से वाले account कौन से group में आने वाले वो हम लोग ने देखा था. So that same thing is going to be seen here also. So this also we are going to deal with that same thing here. ओके, इम्पोर्ट ड्यूटी किस में आता है वो हमें पता होना चाहिए. इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है, इंश्योरेंस कैसे होता है, ये कौन से ग्रुप के अंदर आने चाहिए, कौन से अकाउंट के अंदर आने चाहिए, दैट वी शुड नो. Okay, so see in exams also what they ask in objective type questions, theory paper, I'm talking about theory not of practical. In theory also what they say, what they will do, they will give any name from this name will be there or any another name will be there and they will be asking you to write the group under which group this ledger account will come. Okay, for example अगर मशीनरी दिया है तो वो पूछेंगे कि मशीनरी कौन से ग्रुप में आएगा और ऑप्शंस में देंगे करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, देन करंट लाइबिलिटी या फिर डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम. सो यू शुड नो फॉर मशीनरी विच ग्रुप शुड कम. सो वी हैव क्लियरली सीन इन द फर्स्ट लेक्चर कि मशीनरी हमेशा किस में आता है. येस, इट कम्स अंडर fixed asset, right? Plant and machinery, building, all these things comes under what? Fixed asset. Okay, so the same thing. So this questions, this will be very beneficial for you for the objective type of question. Okay, for practical you are having voucher creation thing. So only one practical will be there from accounting packages, means from this chapter only one practical is there which we will see only after completing this chapter. So now let us see how to create ledger account. I'm just teaching you how to create company first, then how to create the ledgers. In the next portion we are going to see, means next part we are going to see after ledger creation we will see how to create the voucher entry. This is all the stepwise creation only. We cannot create first voucher. पहले हम लोग वाउचर नहीं बना सकते. हमेशा अकाउंटिंग पैकेज या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमेशा सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ता है. फिर उस कंपनी में कौन से अकाउंट्स आपको डालने हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं. उसके बाद ही आपका वाउचर एंट्री होता है. Okay, so you should first create company then the ledger. This is always the steps which we should follow. We cannot create directly voucher entry. हम लोग लेजर्स क्रिएट नहीं करेंगे और डायरेक्टली वाउचर एंट्री करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें उसको वाउचर्स के लिए भी लेजर्स चाहिए रहते हैं.
Okay, so this all things will be required, so that we will see afterwards. Now today we are going to see only related to a ledger accounts. Okay, so we are going to see today two questions depending upon this ledger account, so that everything is clear to you. So let's see the practical of this, okay, using JNU Khata. So I will show you the JNU Khata. So now see, we have already seen BB Enterprises company is there, and in this BB Enterprises company, when I'm opening this JNU खाता, directly it is telling me to sign in. Okay, so आपको ये कंपनी में साइन इन करना है, तो now in my JNU खाता only one company is there. अगर आपके इसमें और कंपनीज रहेंगे तो वो हम लोग सेलेक्ट एक्सिस्टिंग कंपनी या फिर जो कंपनी रहेंगे उसमें से कौन सा भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ओके, नाउ इन दिस कंपनी आई एम गोइंग टू क्रिएट अकाउंट फॉर BB Enterprises only. That's why I will be login. Okay, I will click on login button. I have already saved the password, that's why I'm not writing password. Directly I'm clicking on the login button. Now see, it shows you different things like voucher is there, assets and liabilities, banks, and nothing is there. That's why no data found, nothing is written over here. Okay, सब कुछ blank है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लेक्चर अकाउंट बनाया ही नहीं है और कुछ पैसे का एंट्री किया है क्या, नहीं. That's why now to create the ledger account, लेजेस बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है. दिस 3 लाइन्स यू कैन सी. यस, दिस इज अ मेन्यू बार, सो वी विल क्लिक ऑन दिस. नाउ यहाँ पे आपको मास्टर, वाउचर, रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प, दिस ऑप्शंस यू कैन सी, बट इसमें से हमको मास्टर में जाना है. ओके, सो वी विल क्लिक ऑन मास्टर. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अकाउंट. सो हम लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे, अकाउंट के ऊपर. नाउ सी हियर यू कैन सी द अकाउंट. टू क्रिएट द अकाउंट, सो हाउ वी विल क्रिएट अकाउंट. नाउ सी, आइदर दिस इज फॉर अ सिंगल अकाउंट. अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स. सो एट अ टाइम यू कैन क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स. ओके, बट आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ सिंगल अकाउंट, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ सिंगल अकाउंट. Okay, so see the question, what was the first name? First name was what? It was import duty. ओके, आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपको याद नहीं है तो आई विल शो यू वंस अगेन दिस क्वेश्चन. सी, फर्स्ट इज इम्पोर्ट ड्यूटी. सो फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी कौन सा ग्रुप आना चाहिए इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए? सी, आपको यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट ड्यूटी. अकाउंट का नाम क्या होना चाहिए? इम्पोर्ट ड्यूटी. सो आई विल राइट हियर इम्पोर्ट ड्यूटी. ओके, इम्पोर्ट ड्यूटी. यहाँ पे अकाउंट नेम में आपको इम्पोर्ट ड्यूटी लिखना है, जो क्वेश्चन में रहेगा वो इम्पोर्ट ड्यूटी. ओके, दिस यू हैव टू राइट इन वेयर यू हैव टू राइट योर अकाउंट नेम. नाउ ये कौन से ग्रुप के अंदर आएगा? इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है? येस, इट इज व्हाट? इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. व्हाई इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है? जो हम लोग को डायरेक्ट मिलता है. ओके, डायरेक्टली जिसका पैसा हमको मिलता है काम करने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स व्हाट? मीन्स यू आर गेटिंग इट इनडायरेक्टली. मीन्स आपको मंथली सैलरी मिलता है या हम लोग इंश्योरेंस पे करते हैं, वो भी मंथली रहता है जो दिखता नहीं है. ओके, सो दैट विल पेड आफ्टर मंथ. सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस. और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जैसे कि हम लोग ने कुछ काम किया, कुछ वर्क किया, तो उसका पैसा हम लोग को डायरेक्टली मिल गया. जैसे जो वर्कर्स होते हैं वो जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जैसे उनको आज दिन भर जो काम करेंगे उसका पैसा उन लोग को काम खत्म होने के बाद उनका डेली वेजेस रहता है कि येस आज का काम करोगे तो आपको 200 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, ऐसा. ओके, सो जो डेली वेजेस मिलता है वो कैसे रहता है? दैट डेली वेजेस ऑल्सो इज वॉट? इट इज ऑल्सो वॉट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट. वो डायरेक्ट पैसा मिलता है. लेकिन सैलरी कैसे रहता है? इनडायरेक्ट रहता है, वो इनडायरेक्ट मिलता है, राइट. महीने भर काम करने के बाद आपको मिलता है. हम लोग इंश्योरेंस पे करते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है. ओके, सो लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी का पैसा हम लोग डायरेक्ट लेते हैं. सो इट इज अ व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इम्पोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसका ग्रुप नेम क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस. ओके, सो सब ग्रुप है क्या? नहीं. डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इन सब के लिए हम लोगों ने देखा था कि इनके लिए सब ग्रुप नहीं होता है. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट वाला मेरा क्रिएट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन सेव बटन. पहला मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, सो आई विल क्लिक ऑन सेव बटन. ओके, नाउ नेक्स्ट again I want to create the another one. So what was the second name? इंश्योरेंस. अभी इंश्योरेंस क्या आएगा? यस, इंश्योरेंस कैसा होता है? ये मंथली कट होते रहता है. ओके, यस, जो भी हम लोग इंश्योरेंस पे कर रहे हैं वो हम लोग का डिडक्शन कैसे होता है? मंथली होता है. सो इट इज व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो भी मिलता है वो इनडायरेक्टली मिल रहा है.
वो डेली इस पे मिल रहा है क्या, नहीं, वो मंथली रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, ओके, सो डिपेंडिंग, या ईयरली रह सकता है, हाफ क्वार्टर रह सकता है। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट पैसा मिलता है, दैट्स वाई ये क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो आई विल सेलेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट आई विल राइट द नेम, नेम क्या था, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ओके, सेव इट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, let us see, yes it is machinery, so we will see machinery. Next one is machinery. Now tell me machinery. Yes, machinery is what, fixed asset. Computer is what, fixed asset, जिसको हम लोग फ्यूचर में अपने काम के लिए बेच सकते हैं और उससे हम लोग पैसा ले सकते हैं। ओके, सो दैट इज फिक्स्ड एसेट, सो हियर आई विल राइट मशीनरी। ओके, मशीनरी, अकाउंट नेम इज मशीनरी, ग्रुप क्या है, फिक्स्ड एसेट। नाउ सेव इट। Now next one is what, audit fee. What is the next one, audit fee. ऑडिट फी भी क्या हो गया, ये फीस भी हमको इनडायरेक्टली मिलता है। ओके, ऑडिट फी मंथली मिलेगा ऐसा रहता है, तो डायरेक्टली वो पैसा नहीं मिलता है। सो ऑडिट फी क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो यू आई विल सेलेक्ट अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड आई विल राइट अकाउंट नेम हैज व्हाट, आई विल राइट अकाउंट नेम एज ऑडिट फी, राइट, ऑडिट फी, then save it. Now next one is what, purchase. Purchase sells. Okay, so purchase and sales is there. So purchase and sales, in tally there is a purchase account and for sales there is a sales account. tally में ये दो ग्रुप ऑलरेडी बिल्ट है, परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। लेकिन जेएनयू खाता में उन्होंने क्या कर दिया है, परचेस और सेल्स को डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम में डाल दिया है। ओके, सो जो परचेस होता है वो डायरेक्ट, हम लोग डायरेक्टली उसका पैसा दे रहे हैं। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, तो क्या होता है, परचेस अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ओके, सो योर ऑलरेडी अकाउंट नेम एज व्हाट, परचेस, परचेस। ओके, सो परचेस किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्टली खर्चा कर रहे हैं हम लोग, परचेस कुछ खरीद रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट खर्चा कर रहे हैं, दैट्स वाई इट विल बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइकवाइज सेल, अभी सेल मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट इनकम है। ओके, हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और हम लोग को डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। कुछ खरीदते हैं, अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो डायरेक्टली, और अगर आप कुछ सेल करो तो आपको डायरेक्टली पैसा मिल रहा है। ओके, जैसे हम लोग ने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा या ओल्ड वॉशिंग मशीन, कुछ भी हम लोग ने बेचा तो क्या होता है, हम लोग को डायरेक्टली पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट इनकम मिल रहा है। सो डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इज वन विच इज अर्न डायरेक्टली बाय द वे ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, हम लोग को उसका डायरेक्ट इनकम मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इनकम। ओके, इनडायरेक्ट मीन्स व्हाट, इट इज द वे बाय द वे ऑफ व्हाट, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे डायरेक्ट इनकम क्या होता है कि हम लोग को डायरेक्ट पैसा मिलता है, और इनडायरेक्ट इनकम ऐसा होता है कि जो मैंने बोला था डायरेक्ट इनकम, उसमें न्यूज़पेपर सेल करने का डायरेक्ट इनकम में नहीं आएगा। सेल यहाँ पे क्या आता है, इनडायरेक्ट इनकम में हम लोग अगर कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं या कार्बन बॉक्सेस, वॉशिंग मशीन, कुछ भी ओल्ड थिंग्स सेल कर रहे हैं, उसका हम लोग को क्या मिलता है, इनडायरेक्ट इनकम मिलता है। ओके, ओके, so here the sales will come under what, sales is what, indirect income. Sales is what, indirect income, indirectly you are getting the money, that's why. Okay, so सॉरी नॉट, सेल्स इज नॉट इन, पहले मैंने बोला था आपको डायरेक्ट इनकम, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। परचेस इज व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ खरीद रहे, हम लोग अगर कुछ खरीद रहे तो हम लोग डायरेक्टली उसका पैसा दे रहे, कुछ भी नई चीज़ खरीदते तो हम लोग डायरेक्ट उसका पैसा देते, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स मीन्स डायरेक्ट इनकम, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो हमको डायरेक्टली उसका पैसा मिल रहा है। परचेस करेंगे तो देना पड़ेगा, सेल कर रहे हो तो लेना पड़ेगा पैसा। ओके, तो डायरेक्ट इनकम, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इनकम और अकाउंट नेम क्या आएगा, सेल्स। ओके, ओके, सेल्स, सेव इट। नेक्स्ट सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या था, टेलीफोन चार्जेस। ओके, टेलीफोन चार्जेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सैलरी, प्रोफेशनल फीस, दिस फोर we will now write account for this remaining four of them, telephone, interest and salary. Okay, so telephone charges क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हम लोग टेलीफोन का बिल कैसे भरते हैं,
यस, ओके। मंथली बिल हम लोग का आएगा टेलीफोन का। टेलीफोन चार्जेस हम लोग कैसे करते हैं, मंथली देते हैं, राइट। एक एक दिन का पैसा भरते हैं क्या हम लोग, नहीं। सो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो व्हाट वी विल राइट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट इज दैट, टेलीफोन, टेलीफोन चार्जेस, सेव इट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। अभी ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है यानी हम लोग को इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है, ओके। सो कुछ परसेंट हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या होता है, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम आ रहा है, ओके। दैट मनी इज कमिंग इनडायरेक्टली, दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट इनकम। Okay, so the next one is interest received, so it is indirect income. ओके, जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, कमीशन रिसीव्ड होता है, ओके, जो प्रोफेशनल फीस नहीं, नॉट प्रोफेशनल, जो भी रिसीव्ड करके आएगा ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ऑल दैट थिंग्स विल बी व्हाट, इनडायरेक्ट इनकम, ओके, दैट विल बी इनडायरेक्ट इनकम। सो हियर व्हाट विल राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड, दिस इज इनडायरेक्ट इनकम। देन नेक्स्ट वॉज सैलरी। सैलरी क्या होता है, डायरेक्टली मिलता है क्या, नहीं, इनडायरेक्टली मिलता है। सो वो क्या रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट खर्चा है ना उसका, सो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, SALARY। अगर वेजेस रहता तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, ओके। देन नेक्स्ट इज प्रोफेशनल फीस। व्हाट इज नेक्स्ट वन, प्रोफेशनल फीस, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, सैलरी को ऑलरेडी बनाया रहेगा इसलिए। देन प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस क्या आएगा, येस, इट इज अ डायरेक्ट इनकम। जो भी फीस लग रहा है वो हम लोग तभी के तभी दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ डायरेक्ट इनकम। प्रोफेशनल फीस इज डायरेक्ट इनकम, सो डायरेक्ट इनकम, ओके। देन व्हाट इज द नेम, प्रोफेशनल फीस, प्रो income, save it, account already exist, ओके। सो ये ऑलरेडी बनाया है इसलिए आ रहा है, अगर नहीं रहेगा तो वो नहीं दिखाएगा, ओके। अभी देखना है आपने जो भी जितने भी क्वेश्चन में अकाउंट्स थे वो बनाया है कि नहीं, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में चेक करेंगे, ओके। लेट अस चेक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स इन BB एंटरप्राइजेस, विच आर दे, सी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट आया है। सो ऑडिट फी हम लोग ने बनाया, देखो हम लोग को कितने बनाने थे, क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग को 10 बनाने के। बाय डिफॉल्ट कुछ ऑलरेडी रहेगा, हम लोग ने जो बनाया वो देखेंगे। ऑडिट फी, यस, बैंक अकाउंट ऑलरेडी रहता ही है इसलिए उन्होंने वो दिखाया है, लेकिन हम लोग का था ऑडिट फी, वो आया। बैंक चार्जेस था, नहीं, बैंक चार्जेस हम लोग को नहीं है। सी, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हम लोग के और इनबिल्ट जो ऑलरेडी है वो भी दिखाता है, ओके। साथ में हम लोग ने जो बनाया वो भी दिखाएगा और जो ऑलरेडी है वो भी दिखाता है। दैट्स वाई हम लोग जब सैलरी लिख रहे थे वो बोल रहा था कि इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें है, दैट्स वाई, ओके। जैसे क्या था, और टेलीफोन चार्जेस हम लोग ने बनाया, ओके। देन स्वच्छ भारत सेज दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये ऑलरेडी जो रहेगा तो हम लोग ऑलरेडी इसमें से वो ले सकते हैं, या फिर वो ऑलरेडी रहेगा तो वो बोलेगा कि इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम लोग को बनाने का ज़रूरत नहीं है, ओके। सो दिस इज ऑल द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स वॉट एवर वी हैव क्रिएटेड, दैट इज ऑल्सो देयर, और इनबिल्ट जो रहेगा वो भी आपको वो दिखाता है, ओके। सो दिस इज वन क्वेश्चन विच वी आर सीइंग टुडे। नाउ लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन, ओके। और एक क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग को कंपनी भी नया बनाना पड़ेगा, ओके। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, सी this question, creation of ledgers with appropriate groups using tally, don't see this tally, we are going to see JNU खाता। JNU खाता से हम लोग, अगर आपके पास tally है तो आप tally में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। if you are having tally you can practice that in that case also, same question you can practice there also। see, we want to create MS Satyam Company Limited, आपको कौन सा कंपनी बनाना है, MS Satyam Company Limited। दिस इज लास्ट ईयर्स क्वेश्चन, दैट्स वाई इट इज़ यूजिंग टैली, ये पहले का वर्जन है, पहले पढ़ाया था पिछले साल, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिया है, क्योंकि
ग्रुप तो हम लोग को सेम बनाना है ना, दैट्स वाई। नाउ सी, सत्यम कंपनी आपको बनाना है और आपको ये सारे लेजर्स बनाने हैं। ओके, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, सैलरी एंड अलाउंसेस, प्लांट एंड मशीनरी। वी हैव कैश इन हैंड, ये ऑलरेडी है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी रहता है, सैलरी एंड अलाउंसेस ये हम लोग लिखेंगे अगर ऑलरेडी रह सकता है, सैलरी ऑलरेडी रहता है, प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी रहता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बैंक लोन्स, इसमें से बहुत सारी चीज़ेस ये जेन्यू खाता में ऑलरेडी बिल्ट इन है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन वही बात हम लोग को अगर टैली में रहती तो कुछ चीज़ ऑलरेडी बिल्ट इन रहते थे, लेकिन कुछ हम लोग को बनाना पड़ता था। ओके, सो वी विल सी दिस क्वेश्चन। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, नया कंपनी बनाएंगे। इसके लिए न्यू टैब, ओके। नाउ कंपनी सेटअप विजार्ड, न्यू टैब मैंने क्यों क्लिक किया, क्योंकि हमको नया कंपनी बनाना है, नहीं तो वो पीबी एंटरप्राइजेस में ही रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे न्यू टैब नहीं दबाएंगे तो न्यू वो पीबी एंटरप्राइजेस कंपनी में ही लॉग इन करेगा। नाउ कंपनी सेटअप विजार्ड, वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू कंपनी और चेंज कंपनी। ओके, सो कंपनी का नाम क्या था, एम एस सत्यम। सो आई विल राइट दैट नेम, एम एस सत्यम लिमिटेड। ओके, LTD। देन यहाँ पे केस हैजेस रहने देते हैं, प्रॉफिट मेकिंग, फाइनेंशियल ईयर विल राइट एनीथिंग, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। देन ऑल्सो विल राइट एनी फाइनेंशियल ईयर वॉट एवर वी वॉन्ट, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। इनवॉइसिंग विद बिल, नो, अकाउंटिंग ओनली, हम लोग यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, दैट्स वाई। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर, प्रोसीड करेंगे ना। नाउ इट विल बी आस्किंग यू फॉर द कंपनी प्रोफाइल्स, राइट एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, विल जस्ट राइट भांडुप, मुंबई, स्टेट इज महाराष्ट्र, code I will write anything, then contact number, write anything, website if you have, write, otherwise don't write. Write email ID if you want, I'll write satyam@gmail.com. Then fax number, PAN number. Okay, let us see whether it is moving further or not. Proceed. Okay, so username is what, now this company is Satyam company, so I will write here Satyam, username is Satyam, and we'll just write down the password for Satyam. I'm writing Satyam, whatever you want you can write that. Then confirm the password. Security question if you want any. Name. Login. Now we have created Satyam company. Now we are going to, I'm saving this also password, मुझे याद नहीं रहेगा, that's why I'm saving that password. Okay, now इस कंपनी में भी हमको क्या बनाना है, vouchers. So we'll go in masters, we'll, not vouchers, sorry, accounts. So we are going to create accounts for this. So the first account, cash in hand, it is already there, that's why we are not going to use that. Bank account, see, if you want to see whether it is there or not, I will write here bank account, and बैंक अकाउंट, एंड व्हाट इज द ग्रुप, बैंक अकाउंट बोलेंगे तो किसके अंदर आएगा, ओके, बैंक अकाउंट कम्स अंडर व्हाट, वी हैव सीन इट, सो व्हाट इज दैट, बैंक अकाउंट, it will be current asset, current liability, or fixed asset, tell me fast, you should know that we have seen already. कैपिटल में आएगा क्या, नो, कैपिटल में क्या आता है हमेशा, इन्वेस्टमेंट, ओके, सो उसके अंदर आएगा क्या, नहीं, फिर किसके अंदर आएगा,
बैंक अकाउंट अगर टैली रहेगा तो आपको बैंक अकाउंट का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट ही यूज करना है. सी, इफ यू वांट टू सी यू कैन सी योर ऑल्सो. सी, करंट एसेट्स के अंदर बैंक आया, सो वी कैन सेलेक्ट दैट. अदरवाइज सी, अगर आपको चेक करना है करंट लाइबिलिटीज तो बैंक आता है क्या, नहीं आएगा. ओके, सो कहाँ पे आएगा बैंक, करंट एसेट्स में ही आता है बैंक. सो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है आपको, करंट एसेट्स बैंक अकाउंट. सो ओपनिंग बैलेंस, नो वी आर नॉट डीलिंग विद एनी बैलेंस के बारे में नहीं देख रहे हम लोग. सो वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट, विल जस्ट सेव दिस. सी, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो हम लोग ने बैंक अकाउंट बनाया तो उसने सक्सेसफुली उसको क्रिएट कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सैलरी एंड अलाउंसेस. सो सैलरी एंड अलाउंसेस किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. कहाँ पे आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो विल राइट हियर सैलरी एंड सी, कंपनी का नाम देखो सत्य में चल रहा है, बीबी एंटरप्राइजेस में चल रहा है क्या, नहीं. सैलरी एंड अलाउंसेस, save it, account created successfully. Next is what, next was what, आपको क्वेश्चन देखना है तो देखेंगे. कैश इन हैंड ऑलरेडी इज देयर, दैट्स वाई इसको बनाना नहीं पड़ता. बैंक अकाउंट बनाया, सैलरी एंड अलाउंसेस बनाया. प्लांट एंड मशीनरी, सो लेट अस सी द प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी किसके अंदर आने वाला है, फिक्स्ड एसेट, राइट. सो विल जस्ट सेलेक्ट फिक्स्ड एसेट्स एंड व्हाट आई विल राइट हियर, प्लांट एंड मशीनरी. Machinery. Okay, then save it, account created successfully, good. Then the next one क्या था, prepaid expenses. Prepaid expenses is what, current assets. Okay, ये current asset के अंदर आता है prepaid expenses. See, let us see if you want, if it comes or not. यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, आपको लिखना पड़ेगा. Okay, prepaid expenses, what is the name, prepaid, पहले ही पे किया है तो prepaid expenses क्या आया, is current asset, save it. नेक्स्ट इज परचेस अकाउंट. परचेस अकाउंट अगेन हम लोग ने पहले ही देखा था कि परचेस अकाउंट किसके अंदर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, सो परचेस अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो आई विल राइट हियर परचेस. लेट अस सी वेदर द नेम इज देयर. सी योर परचेस इज देयर, सो आई कैन राइट दैट. ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर परचेस, परचेस save. Okay, saved. The next one is what, sales account. वो question, this question I am talking about this question. Okay, purchase account हो गया, sales account है. सेल्स अकाउंट में क्या आएगा, सेल्स अकाउंट क्या था हम लोग ने देखा था, एंड दैट इज डायरेक्ट इनकम. ओके, सो सेल्स अकाउंट वी विल सी व्हाट इज सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम. डायरेक्ट इनकम, सी यू इन द सब ग्रुप यू कैन सी सेल्स. ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हाट इट इज, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, देन save it. Okay, next one is what, see the question if you want. Bank loans liabilities, already it is given bank loans liabilities, so ये loans liabilities में आएगा. Okay, so liabilities, loan liabilities, तो हम लोग current liabilities में देखेंगे और उसका सब ग्रुप क्या रहेगा, loan liabilities. सॉरी, यहाँ पे लोन्स लाइबिलिटीज है ऑलरेडी, सो उसके के अंदर आने वाला है. ओके, लोन लाइबिलिटीज, नो सब ग्रुप, आई वांट लोन्स लाइबिलिटी. तो यहाँ पे लिखना है आपको बैंक लोन्स, यू वांट टू राइट बैंक लोन्स, LOANS. ओके, देन सेव इट. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन बैंक लोन्स हो गया. देन ABC लिमिटेड कस्टमर्स. अभी ABC लिमिटेड कस्टमर्स है तो कस्टमर है तो क्या आएगा, डेटर रहेगा कि क्रेडिटर रहेगा, yes, customers will be debtor and vendors are what, vendors will be creditors. Okay, so we will write here ABC limited, it will be debtors. So sundry debtor किसके अंदर आएगा, let us see, आपको पता होना चाहिए किसके अंदर आता है, sundry debtors current एसेट. ओके, सो सब ग्रुप क्या आएगा, देखो करंट एसेट लिखा है, ग्रुप सब ग्रुप का नाम सैंडी डेटर्स है. अकाउंट नेम में क्या लिखना है आपको, ABC, व्हाट इट इज, ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड, देन सेव इट.
Okay, next is XYZ Limited. XYZ Limited is what? Vendor. Vendors क्या रहता है? Creditor. तो अब क्या आएगा? करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में आपको सेंट्री क्रेडिटर्स लिखना है. ओके, सेंट्री क्रेडिटर्स. सो आपको परचेस करने के लिए चाहिए या एक्सपेंसेस दैट दे आस्किंग. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं तो वेंडर्स से मीन्स वॉच बेचने वाले रहेंगे. ओके, सो फॉर so we'll write for expenses account name is what? XYZ Limited. Okay, XYZ Limited and save it. Then next is what? Provisions. Okay, provisions is there. So we will write provisions. Provisions means what? It comes under provisions only. So यहाँ पे तो नहीं दिया है. Provisions I think current assets के अंदर नहीं था, current liabilities में था. Okay, current liabilities. Let us see the subgroup. Yes, current liabilities provisions is there. So provisions and इसका नाम भी provisions से दिया है. Provisions. Okay, then save it. Next is investment. Okay, so investment, this also, it also comes in current liabilities. So no, current assets. Inventory. I think fixed asset should be there. Plant and machinery. Investment. If you are investing the money, here the subgroup is not given. Where is the investment? C, property and assets group name investment. It comes under capital and liabilities. Okay, capitals and liabilities. Investment is there? No, it is not there. Property and assets. It is not showing here. Investments, direct expenses. Oh, see, your investment is already there. Okay, so we'll just select investment. Okay, so investment in bank deposit. ऐसा कुछ नहीं बोला, so we'll directly write investment in and the name is investment. Okay, so investment. Direct group name is investment and we will write the account name investment and we will save it. Then next one is what is given in the question. Let us see. Question, commission received. What it is? Commission received. So commission received means what? Whatever what I told you, कुछ भी received के साथ आएगा तो वो indirect income होगा. Interest received, commission received, discount received, this all are what? Indirect income. ये income हमको indirectly मिल रहा है. That's why it is indirect income. So indirect income and what you will write here? Commission received. Commission received. Okay, save it. नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड. अभी डिस्काउंट अगेन रिसीव्ड वर्ड आया तो क्या आता है? इनडायरेक्ट इनकम. जितने भी रिसीव्ड आएंगे वहां पे हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्ट इनकम लिखना पड़ता है. डिस्काउंट रिसीव्ड, व्हाट इज दैट? इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट इनकम. नेक्स्ट इज व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट मीन्स वहां पे बनाया है इसीलिए बोल रहा है वो. ओके, देन okay, the next is what was there in the question? Income, discount, wages account. Wages means what?
Yes, this we are getting what directly, so it is what direct expenses. Wages account is what direct expenses, डायरेक्ट पैसा मिल रहा है इसलिए that is direct expenses. Wages is what direct expenses. Save it. ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट का हम लोग को एक दिन का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसका पैसा मिलता है क्या? नहीं. सो मंथली मीन्स जैसे जैसे हम लोग करेंगे एक साथ उसका पैसा मिलेगा. सो इट इज ऑल्सो वॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो वॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट. Then save it. Okay, the next one is sales return. What is that? Sales return. Sales return. Now here also we want to see sales return is what? Sales is direct income, so direct income, in that we will see whether sales return is there. No. So indirect income में आएगा वो. Indirect income, whether sales return is there? No, it is not there. Direct return, no, it is not there. Okay, what it is? Sales return. तो ये कहाँ पे आता है? आपको डायरेक्ट इनकम में रहता है. सेल्स में हम लोग ने देखा था इट इज डायरेक्ट इनकम. ओके, सो डायरेक्ट इनकम, so I'll write here sales return. Save it. Next is printing and stationery. So printing and stationery means what? It is also indirect expenses. Printing and stationery. See, indirect expenses. Printing and so it is what? Printing and stationery, everything is indirectly. That's why we'll write here indirect expenses. And what you will write here? Printing and stationery. Printing and stationery. Printing and stationery. These are what? Indirect expenses. Save it. Then depreciation. What is this depreciation? It is also indirectly money, indirect expenses. Okay, so that's why it is also indirect expenses. Depreciation. So this is also what? Indirect expense. So save that. Next is furniture. Furniture is what? Fixed asset, right? Furniture is fixed asset. So here we'll write fixed asset, furniture. Furniture. Save it. Next is goodwill. See, furniture is over. Goodwill, outstanding expenses. So goodwill and outstanding expenses is remaining. Goodwill is also fixed asset. So what we will select here? Good fixed asset. In none, whether goodwill is there, it is not there. So we'll just write over here goodwill. Goodwill. Save it. Last one, outstanding expenses. Outstanding expenses is liability, that is current liabilities. So what is outstanding expenses? Current liability. So we'll just write current liabilities, and here we are going to write outstanding expenses. Outstanding expenses. Yes. Okay, so those we have created. See, suppose in examination this is not there, but in a previous year this question was asked that create the accounts and then show to the examiner the list of accounts created by you. So that time they used to show the list of accounts this way to the examiner. लेकिन आपको ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे होता है. तो ये है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स किस कंपनी का? सत्यम कंपनी का. यहाँ पे कंपनी का नाम आया है सत्यम. सो सी यह MS सत्यम लिमिटेड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. तो ये उसके सारे अकाउंट्स हैं. ओके, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स. सो यहाँ पे दोनों भी आया है जो हम लोग ने बनाया है, और ऑलरेडी बिल्ट इन अकाउंट्स भी
आया है. Okay, so this is how you want to create the ledger accounts. Understood all of you? So how to create the ledger accounts? So first you should always create what. फर्स्ट हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, कंपनी बनाना पड़ता है, उसके बाद हमको लेजर्स बनाने पड़ते हैं. ओके, देन वी हैव टू डू विद what creation, voucher creation. Okay, first is company creation, then is ledger account creation, and then is the voucher creation. Then everything gets created, then you can do the printing work, that is balance sheet. You can see the balance sheet, trial balance, profit and loss, everything. Okay, so this is all for today. So today we have seen how to create ledgers. In the next lecture we will see about voucher creations. So this is all for today. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe, and happy learning.